Hi friends, this is Praveen Big Bro. Once more, a warm welcome to everyone. We are back with a band of with a full of energetic. Okay, and today topic is something special. Okay, and basically I am going to deal basic of aerodynamics. Okay, if you see the chapter that is aerodynamics, but basically I am going to cover in this chapter aerodynamics 1, that is basic part. Okay, and first somebody asking me that, sir, what are the reasons behind of your beautiful and cute channel, what you have the name put up, please describe what are the reason behind of it. Okay, so friends very well, I am what first of all I will tell my name of YouTube channel. Okay, this is the name of my YouTube channel. What is this is a space and aviation academy. Okay, why I have put this name in our YouTube channel? Because space, that is universe, upper part of the atmosphere. Suppose this is a atmosphere, this is earth. Okay, and there is some layer after the certain height and certain distance, the universe is started, space is started. This is atmosphere and this is a universe. Okay, so basically I'm a aeronautical engineering, and after that I am complete my MTech from aerospace engineering. That's why I put up the name to cover the both atmosphere and the out of atmosphere, that is a space. So that's why I'm put up my name of my beautiful and cute channel, that is a space and aviation academy. Okay, and this is a very beautiful name, I think you like it. Okay, and after that there is a logo is something different. Okay, a small ISRO team, there's a great vision. This is a logo like a circle, clamshell, that is a Mangalyaan mission. There is a Mars planet and the beautiful tricolor of India that are proud of himself. Okay, so these are just basic introductions about my YouTube channel, because somebody asking that's why I'm told you. Okay, so I will erase it. So basically our discussion is a aerodynamics. Okay, so in this chapter basically I am going to cover some roadmap. Okay, what are going to be studied in the aerodynamics, that is the roadmap of the chapter, what is going to. सो फ्रेंड्स, इनिशियली आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्या होता है ना कि जब भी हम स्टडी करते हैं एरोडायनेमिक्स में ना, तो पहले हम जानते हैं इसका मीडियम क्या है. सपोज दैट अगर ट्रेन चलती है ना, ट्रेन ट्रैक पे चलती है, तो वी आर गोइंग टू एनालिसिस ऑफ द ट्रैक सिस्टम. हम ट्रैक एनालिसिस करते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं कैसे ट्रैक होना चाहिए. अगर प्लेन और सरफेस हो तो उस पर ट्रैक कैसे चलना है, अगर माउंटेन पर ट्रैक है तो कैसे ट्रेन चलेगी. तो वी हैव टू बी स्टडी द ट्रैक, the medium through which the train is going to be moved on what particular surface. In the same sense, अगर मुझे एरोप्लेन को या कोई हेलीकॉप्टर को अगर मीडियम उड़ाना है, चलाना है, ठीक ना, मीडियम इज व्हाट, एटमॉस्फेयर उड़ाना है. सो वी हैव टू बी स्टडी अबाउट द एटमॉस्फेयर, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में कितने लेयर होते हैं, किस लेयर में हम एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं, क्या सर्टेन हाइट होती है, कहाँ तक हम उड़ा सकते हैं, उसकी उस डिस्टेंस में डेंसिटी क्या है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसके रिलेशनशिप क्या है. तो एक अलग चैप्टर है, दैट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर. ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर दैट टॉपिक इन अदर लेक्चर्स, बट टुडे in this chapter I am going to describe only road map of aerodynamics. कैसे पढ़ते हैं एरोडायनेमिक्स को, क्या क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट है, कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंस है आजकल. मतलब इन कॉलेज सो क्या होता है ना कि मुझे ये नहीं चल पाता कि यार मुझे पढ़ना कैसे है एरोडायनेमिक्स को, और ये बहुत ही अच्छा है. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इन फॉर एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. So in this topic I am going to just only cover the road map. Okay, so this is a very beautiful diagram. Okay, so इसको मैं ना बारीकी समझाता हूँ कैसे लिखा हूँ, ठीक ना. सो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली हम पढ़ते हैं एरोडायनेमिक्स को. ओके,
आपको पता है हम जो एरोप्लेन फ्लाई करते हैं ना, कहाँ करते हैं? एटमॉस्फेयर में करते हैं। इट मीन्स व्हाट? एयर। ओके, सो एयर फ्लो करते हैं। एयर मीन्स व्हाट? इट इज अ फ्लो ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। ओके, सो बेसिकली जो फ्लो पढ़ते हैं, जो फ्लो होता है हमारा ना, फ्लो ऑफ एयर, एयर का फ्लो पढ़ेंगे, ठीक ना। वो दो तरह के होता है ना। एक होगा आपका कंप्रेसिबल फ्लो, एक होता है आपका इनकंप्रेसिबल फ्लो। उसको हम दूसरे टर्म में डिफाइन करते हैं कि एक होता है मेरा इनविस्कस फ्लो और दूसरा होता है विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो कहने का मतलब है जिसमें फ्रिक्शन होता है। ओके, जिसमें फ्रिक्शन होता है। और इनविस्कस फ्लो कहने का मतलब है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। ओके, इसका एप्लीकेशन क्या है हम आगे देखेंगे। बस बेसिकली, और जो विस्कस फ्लो होता है ना, जिसमें फ्रिक्शन होता है, उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? विस्कस फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? इसे हम क्या कहते हैं, और भी क्या कहेंगे? कंप्रेसिबल फ्लो कहेंगे। कंप्रेसिबल फ्लो। ओके, और जिस फ्लो में फ्रिक्शन नहीं होगा, निग्लिजिबल होगा। हालांकि हर जगह फ्रिक्शन होता है, दैट इज यू नो वेरी वेल, लेकिन जिस फ्लो में, है ना, एयर में कहीं भी आप मान लीजिए जहां पे फ्लो हो रहा है और वहां पे हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, निग्लिजिबल है, इन दैट फ्लो वी आर गोइंग टू कॉल incompressible flow. Okay, so this is what? This is our incompressible flow. Incompressible flow. There is also another term compressibility. Okay, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं क्या है। ओके, सो बेसिकली एरोडायनामिक्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है आपका विस्कस फ्लो, दूसरा होता है इनविस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो में हम लोग क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लो। एंड इनविस्कस फ्लो में हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, और ये आपका हो गया इनकंप्रेसिबल फ्लो। उसके बाद क्या होता है इनकंप्रेसिबल में? क्या होता है अब हम यहाँ देखते हैं। इनकंप्रेसिबल में क्या होता है, यहाँ पे एक दो इक्वेशन होता है, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, एक मोमेंटम इक्वेशन होता है, ठीक ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है उसे हम कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। ये दोनों में लागू होता है, इन विस्कस फ्लो भी होता है और विस्कस फ्लो भी होता है। ओके, और कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है ना, मास कंजर्वेशन, हम जानते हैं कि इन द इंटायर द यूनिवर्स मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, इफ आई एम ऑन द अर्थ 50 kg, in also the mass is also 50 kg, that can never be changed. Okay, so mass is a constant. So basically I will put a formula, I will derive the after some time in next lecture. Okay, so its formula is for continuous rho times area times v1 equal to rho times area times into v2. This is a basically equation of what? This is equation of मास कंजर्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशंस। ये कहाँ से आया, कैसे आया? आई विल ड्राइव इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। बस बेसिकली समझिए क्या है ना, इसको हम ड्राइव करेंगे, है ना। तो ये जो इक्वेशन है मास कंजर्वेशन इक्वेशन है और कंटिन्यू इक्वेशन है, ये दोनों पे लागू होगा। विस्कस फ्लो में भी लागू होगा और इन विस्कस फ्लो में भी लागू होगा, दोनों में होगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं एक अगला इक्वेशन है मोमेंटम इक्वेशन। यू नो वेरी वेल द मोमेंटम इक्वेशन, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मास। Okay, so the momentum equation is what? Force is equal to mass into accelerations. Okay, you know, have you ever you studied in the class 9th and 10th standard? So force is equal to mass into acceleration, and it is below the two equations also. दो और इक्वेशन होते हैं, एक का नाम है आयलर्स इक्वेशन, दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशंस। इस दोनों इक्वेशन को हम सिर्फ लागू कहाँ करते हैं? इन विस्कस फ्लो में। ओके, और इसके बाद हम इनके साथ साथ हमें और क्या पढ़ना होता है इसको समझने के लिए, क्योंकि इस दोनों में ना साथ साथ आपको और भी एप्लीकेशन यूज होगा। जैसे कि आपको बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉलेज होना चाहिए कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, अभी पढ़ना है, आइसेंट्रोपिक फ्लो पढ़ना है, एनर्जी इक्वेशन भी पढ़ना है हमको। ये सब कहाँ हम यूज करेंगे? इन विस्कस फ्लो में यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशंस। ओके, जनरली पता है आपके जो सिलेबस होगा ना, एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा, आप देखिएगा इन थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर, कि वो सिर्फ स्टार्टिंग में ना क्या करता है, सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट
एप्लीकेशन का पार्ट दिया हुआ है आपका, ये आपका नहीं दिया होगा, आपको ये नहीं बताया होगा कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन वो नहीं दिया होगा आपको सिलेबस में, वायलेट्स इक्वेशन नहीं दिया हुआ, बर्नौलीज इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन नहीं दिया हुआ, ये सब नहीं दिया, बिकॉज वो ये मान के चलता है कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स आता है। ओके, एरोडायनेमिक्स वाले जो हैं वो ये मान के चलते हैं कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज अच्छे से पता है, आपको थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज अच्छे से पता है, उसके बाद आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप इसको। ओके, सो क्योंकि ये सब सारे उसी में पढ़ाए जाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, बर्नौलीज इक्वेशंस, मास कंजर्वेशंस और आपको एनर्जी इक्वेशंस, और हम इसमें पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, आइसेंट्रोपिक पढ़ते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, ये सब पढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। तो पहले मुझे थर्मोडायनेमिक्स का और फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। ओके, फिर हम इस पर हम आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको उस सिलेबस में एक दिया हुआ टर्म दिया होगा कि लो स्पीड विंड टनल एंड द हाई स्पीड विंड टनल, ये दिया होगा आपको, लो एंड हाई स्पीड दिया होगा, क्योंकि इस दोनों में हम इस सारे इक्वेशन का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसको डेरिवेशन में। ओके, लो स्पीड विंड टनल एंड हाई स्पीड विंड टनल क्या होता है आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एप्लीकेशन पार्ट है, इस जो इनविस्कस का एप्लीकेशन पार्ट में बता रहा हूँ आपको। ओके, तो हम स्पीड ऑफ साउंड भी पढ़ेंगे, लो स्पीड विंड टनल भी पढ़ेंगे, हाई स्पीड विंड टनल भी पढ़ेंगे और रॉकेट इंजन भी पढ़ेंगे। ओके, जस्ट एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूला भी इसको भी हम ड्राइव करेंगे। ओके, सो ये हो गया। इन अनदर हैंड विस्कस फ्लो में हम क्या पढ़ेंगे, विस्कस में फ्लो में हम पढ़ेंगे जिसमें आपका कंप्रेसिबल फ्लो भी कहते हैं, और इसमें डेंसिटी वेरी करेगा। क्या वेरी करेगा? डेंसिटी, यू नो डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी रो, मास अपन वॉल्यूम। व्हाई डेंसिटी इज वेरी? बिकॉज यू नो अगर हम बोल रहे हैं कंप्रेसिबल फ्लो, आप सोचो जब हम कंप्रेशन बोल रहे हैं तो मतलब कंप्रेस कर रहे हैं, है ना, इस चीज को, और जब कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ना, मास कांस्टेंट, और ये क्या वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका डेंसिटी वेरी होगा। जब डेंसिटी वेरी होगा तो क्या होगा आपका, उसका फिर प्रेशर भी आएगा आपका, है ना, प्रेशर वेरिएशन ही होगा। इसीलिए आप जब भी हम लोग यूज करते हैं ना, जो आपके जो रॉकेट होते हैं, PSLV होते हैं, जिसे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, जो बड़े जो स्पेस व्हीकल होते हैं, हम क्या करते हैं उसमें हम कंप्रेसिबल फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दे कैन बी कंप्रेस्ड so that its volume can be decreased and pressure should be high. Okay, and then after it can produce a large amount of thrust. उस थ्रस्ट मतलब थ्रस्ट से क्या होगा, इससे इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा ताकि वो मतलब लिफ्ट अप हो जाता है। इतने बड़े मतलब बहुत हाई हैवी वेट होते हैं रॉकेट का, जो स्पेस व्हीकल होते हैं काफी, इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वेट एंड मास। तो इसको लिफ्ट अप करने के लिए क्या करना था, मुझे काफी वॉल्यूम कम करना पड़ता है, डेंसिटी बनाना पड़ता है, और इससे क्या होगा, प्रेशर क्या भी हाई प्रेशर रहेगा, तभी तो उसमें फ्यूल मतलब ज्यादा आएगा, और जिससे क्या होगा, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल प्रोड्यूस, देन इट कैन लिफ्ट ऑफ। ओके, सो कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे। अगला है जो हम विस्कस फ्लो में पढ़ेंगे, वो आपका क्या होगा, बाउंड्री लेयर कंसेप्ट, फिर पढ़ेंगे लेमिनार बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो एंड फ्लो सेपरेशंस। ओके, ये काफी बाद चैप्टर आने वाला है, कंप्रेसिबल फ्लो सेपरेशन कैसे होगा ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। विस्कस फ्लो को हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उससे हम पहले पढ़ेंगे आपका इन विस्कस फ्लो, जहां पे डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। इन विस्कस फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, और विस्कस फ्लो में क्या होगा, आपका डेंसिटी वेरी करेगा। ठीक ना, आखिर क्यों करता है उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक ना, मैं क्या करता हूं, इस पार्ट को इरेज करता हूं, ठीक ना, थोड़ा सा इरेज करता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। मिट जा, है ना, स्क्रीन मिटा देते हैं ना, फॉर्मूला को मिटा देते हैं। ओके, चलिए देखिए, पता है मैं क्या बोल रहा था, एक होता है मैक नंबर, क्या होता है, मैक नंबर होता है ना। जनरली हम मैक नंबर इस्तेमाल करते हैं स्पीड को अति रिलेशनशिप करने में, मतलब कि कोई से है ना, जिसका फॉर्मूला आपका होता है वेलोसिटी अपन ए, है ना। वेलोसिटी
उस व्हीकल का हो सकता है, या स्पेस व्हीकल हो सकता है, या एरोप्लेन का हो सकता है, और ये होता है स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, है ना। साउंड की स्पीड एयर में क्या होता है, वी नो वेरी वेल, 343 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और इसका फॉर्मूला होता है, हम कैसे इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे, बट जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई विल टेल यू दैट ये जो होता है वो होता है अंडर रूट गामा टाइम्स ऑफ आर इंटू टी, यू नो वेरी वेल गामा, है ना, इंडेक्स, और इट्स वैल्यू इज फॉर एयर इज व्हाट 1.4 होता है, आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर दैट इज इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स, okay, at normal, we know at normal temperature whatever the temperature we use, and after use the value will come 343 meter per second speed of an air। और इस मैक नंबर से हम बहुत अच्छे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना। अगर मुझे कंप्रेसिबल की भी डिफाइन करना होगा, इनकम्प्रेसिबल डिफाइन करेगा, हम मैक नंबर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना। ये देखिए कैसे, इसमें मिलाता हूं, अगर मैक नंबर जो होगा, इसमें बेसिक मैक नंबर होता क्या है, मैक नंबर ये होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ substances, either you can see any other substance vehicles upon the speed of sound in the air, okay, that is called Mach number। अब मैं क्या बोल रहा था, कंप्रेसिबिलिटी का, अगर कंप्रेसिबल, अगर देखो अगर मैक नंबर लेस देन 0.3 हो जाए, मैक नंबर इज लेस देन 0.3, इन दैट केस दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर किसी भी फ्लूइड का, किसी बोलो फ्लूइड का बोल लो, है ना, एयर बोलो, वाटर बोलो, कुछ भी बोलो, उसका मैक नंबर क्या होगा, अगर लेस देन 0.3 हो, इन दैट केस इट इज इनकम्प्रेसिबल, ओके। और अगर मैक नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0.3 होगा, है ना, उसे क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल बोलेंगे, कंप्रेसिबल बोलेंगे उसको, ओके। और कंप्रेसिबल काफी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना कि कंप्रेसिबल क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, तो आप आगे अच्छे समझ सकते हैं, ओके। तो याद रखना है, कंप्रेसिबल मींस क्या होगा, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और इनकम्प्रेसिबल इसको हम इनकम्प्रेस नहीं कर रहे हैं। जनरली वाटर है ना, वाटर हो गया, वाइल हो गया, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, बहुत कम, इतना कम होती है, इसे नीलेट मान लेते हैं, ओके। और फिर इसे कंप्रेसिबल क्या होगा, एयर होगा, है ना, गैसेस लाइक हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, यहाँ तक आप जो गैस यूज करते हैं ना, सीएनजी कहते हैं ना, आप सीएनजी का नाम सुना है ना, सीएनजी क्या है पता है, कॉम्प्रेस्ड, कंप्रेस नेचुरल गैस होता है ना, ये देखो आ गया ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये सीएनजी होता है ना, जो गैस सिलेंडर में होता है, वो बहुत ही काफी हाई प्रेशर को कंप्रेस किया रहता है, ओके। सो आगे हम पढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्राइब करता हूँ कंप्रेसिबिलिटी का, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, ओके, वो देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है ना। मैं पूरे को इरेज कर देता हूँ, ओके। दिस इज टेक अ टाइम टू इरेज इट, ओके। चलिए इतना मैं करता हूँ, वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम। मैं क्या बोल रहा था, कंप्रेसिबिलिटी ना, कंप्रेसिबिलिटी, ये ना, ये पता है क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। और इसको हम जो डिनोट करते हैं ना, डिनोट हम करते हैं बीटा से, किसे करते हैं, बीटा से करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/k, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ओके। इसको आप नोट कर लीजिएगा।
कंप्रेसिबिलिटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, बीटा इक्वल टू 1/k। अब ये k क्या होता है, इसकी फॉर्मूला क्या है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना, उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इस साइड हम रिलेज करते हैं, ठीक ना। मैं चाहता हूँ ना, एक लड़का है राइटर, ठीक ना, वो बोलता है सर आप ना चीज़ों को पढ़ाते हो अच्छे से, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कीजिए ना, इसीलिए उनके कारण मुझे पूरा सा इसको क्या करना पड़ता है, इसका ऑपरेशन करना पड़ता है ना। देखो अभी कैसे इसको हम ऑपरेशन करेंगे, कितना अच्छा डेरिवेशन करेंगे ना, जिससे मुझे कंप्रेसिबिलिटी का और इनकम्प्रेसिबल में समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, क्लियर से। ओके, या इट्स वेरी क्लियर। राइटर को क्या कहते हैं ना, दिमाग में चल रहा है कि सर कैसे मतलब उसको डेरिवेशन ये कहाँ से आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको बताइए ना सर हमको। राइटर है ना, ज़्यादा परेशान की आवश्यकता नहीं है ना, तुरंत हम इसको डिराइव करते हैं। देखो सपोज दैट, हाँ यस, ये आपका एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, और ये आपका पिस्टन हो गया, और ये आपका है ना, ये या ओके, और इसमें क्या गैस है, क्या है आपका गैस है। ओके, टेढ़े लग रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर से मिटाते हैं इसको, फिर से मिटाते हैं, सीधा बनाते हैं, है ना। ड्राइंग थोड़ा सा गलत है, हाँ इस बार सही लग रहा है, इस बार सही लग रहा है। राइटर बोलेगा सर इस बार सही है, बिल्कुल परफेक्ट आपने बना रहे हैं सर आप, इस बार सही है। ओके, अब इसके अंदर क्या है, एयर है। ओके, एयर है, हम डिफाइन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे ना अभी। ओके वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर फोर्स लगाता हूँ, क्या लगाऊंगा इसमें, फोर्स लगाता हूँ, ठीक है ना। फोर्स लगाया, यहाँ तक वॉल्यूम क्या था, मैं मान लो तो बी था। जब इसको आप कंप्रेस करोगे ना, कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ना। ओके, तो ये मान लो यहाँ पे आकर डिक्रीज कर गए, ये पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, और जो वॉल्यूम कम हुआ वो डेल वी हो गया। ओके ओके, सो आप पता है, आपको पता है ना वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंशन, पता नहीं क्या था, वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, ये क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो पता है आपने पढ़ रखा होगा। हाँ किसने पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रखा होगा आपने, है ना। और इसमें बताओ प्रेशर क्या होगा, बताओ प्रेशर कितना वेरी कर रहा होगा, हम क्या जानते हैं क्या होगा, फोर्स है ना, जो फोर्स होगा और क्या होगा, चेंज इन एरिया होगा, यही होगा ना, है कि नहीं। कितना फोर्स, फोर्स अपन दैट इज प्रेशर। ओके, फ्रॉम हुक्स लॉ आप जानते हो, हुक्स लॉ क्या जानते हो बताओ, स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। इस का क्या आपका के आएगा, और ये स्ट्रेन आ गया, है ना। तो के इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। आप इस वैल्यू पुट कर दो आप, डेल पी अपन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो आपका के का वैल्यू दे दिया, आप इस के को आप यहाँ पुट कर सकते हो। सो बी इक्वल टू बेसिकली, बी इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू डेल पी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपन ये क्या होगा v और डेल पी अपॉन डेल v, ये हो जाएंगे। ओके, आप इसको यहाँ से आप बदल सकते हैं, देखिए ये सेम है ना, आप यहाँ से करो तो कैसे कर देखो, यहाँ पर देखो के इक्वल टू क्या आया, डेल पी अपन चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वैल्यू आया ना। अभी क्या होगा, डेल पी गुने वॉल्यूम अपन डेल वी। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा इसको करेक्शन करते हैं ना। बीटा क्या हो जाएगा,
1/k। इसको पलट दो, तो पलटोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, रिसीव करेंगे क्या होगा बताओ, डेल वी अपन डेल पी गुने भी, ये चलेगा। दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या आपका, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी आ गया। ओके, सो आप देख सकते हो दिस इज व्हाट कंप्रेसिबिलिटी। अब हम एक और डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कंप्रेसिबिलिटी फॉर द व्हाट, फॉर द आइसोथर्मल ऑफ द गैसेस एंड द एडियाबैटिक ऑफ द गैसेस, उसको हम डिफाइन करेंगे। और इस कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे हम जज करें कौन सा गैस कंप्रेसिबल है, कौन सा गैस कंप्रेसिबल नहीं है। वाटर का भी प्रूफ करेंगे, वाटर क्या बहुत ही उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो उसको वाटर वाइल हो गया, ये सब क्या इनकम्प्रेसिबल फ्लो होते हैं। एयर कंप्रेसिबल फ्लो में आता है और एयर के पास मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है। ओके, सो बेसिकली वी आर गोइंग डिस्कस क्या करेंगे, हमारा रहेगा एयर पे जल्दी हम बात करेंगे। ओके, सो आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी, विस्कस फ्लो और इन विस्कस फ्लो। ओके, थोड़ा सा हम एक और हमें ओवरव्यू कर देता हूं मैं आपको। अगर कि मैं क्या बोलता हूं, क्या पढ़ा था मैं, अगर मैक नंबर क्या होगा 0.3 से बड़ा हो तो क्या होगा फ्लो, वो क्या होगा कंप्रेसिबल हो जाएगा, कंप्रेसिबल होगा। और मैक नंबर क्या होगा लेस देन 0.3, वो क्या हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल होगा। और एक बात पता है आपको, मैक नंबर का हम और भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, स्पीड में करते हैं कि मतलब कौन जो स्पेस क्राफ्ट हो या एयर क्राफ्ट हो, कितना स्पीड ऑफ साउंड के एयर के कंपैरिजन में कितना वो हाई स्पीड उसकी हो सकती है, कितना फ्लो कर सकती है, कितना मतलब रफ्तार से चल उड़ सकता है ना, वो देखते हैं। देखो अगर मैक नंबर इक्वल टू 1 हो उसे हम बोलते हैं सोनिक, क्या बोलेंगे सोनिक। अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 उसे क्या बोलते हैं सुपरसोनिक। और क्या बोलेंगे अगर m लेस देन 1 उसे क्या बोलेंगे सबसोनिक। सो दिस आर ऑल्सो पॉइंट, जब आप पढ़ोगे रॉकेट इंजन पढ़ेंगे ना तब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो किसका जो मैक नंबर 1 होता है, किसका लेस देन 1 होता है और किसका ग्रेटर देन 1 होता है। जनरली रॉकेट इंजन उसका मैक नंबर मोर देन 1 होता है। ओके, जो रॉकेट हम पढ़ते हैं, इसी के जब रॉकेट फ्लाई करता है ना, सेटेलाइट के उड़ता है ना, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दैट सो आई थिंक द लेक्चर इज गोइंग टू बी इन। ओके, आज हम यही समाप्त करते हैं अपने लेक्चर को। सो नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे, तब तक है ना आप अपने हेल्थ को अच्छे से रखिए और अच्छे से पढ़िए। सो थैंक यू सो मच। वंस मोर आई विल टेल यू दैट if you like this lectures, okay, so go and subscribe my channel, like the video and share with your friends for which they want need it. Okay, so thank you so much.